start exercise 5G of chapter 5th derivatives. So let us start. Because in this exercise we will do parametric equations. Parametric equations. What is parametric equations? Parametric equations होंदियां ही अपने कोल. In that equations, when x and y are given in terms of third variable, तो कि ये x पे y are given in terms of third variable. मतलब कि जेडे तुहाडे कोल x पे y है वो की है किसी थर्ड वेरिएबल दे विच दिते होंगे. से कोई एग्जांपल ले लो, मैं ले लिया भी t वेरिएबल दे विच दिते होंगे. ठीक है जी. देन अपन dy by dx किवें फाइंड करिया करांगे. सो dy by dx इज इक्वल्स टू, देखो जिदे x एंड y जेडे वेरिएबल दे विच गिवन होएगा अपन ओदे वेरिएबल दे विच ओदा डेरिवेटिव करना है. ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू ओदे. हुण जे मान लो x ते y दोनों है जेडे वो t वेरिएबल च गिवन है, दैट मींस अपन विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करांगे. सो किवें लिखांगे dy by dt अपॉन dx by dt. इन किवें देखो की कर सकते हैं dy by dt जदों तुसीं इनू उल्टा करके ऊपर लेके आओगे दिस इज dt by dx, dt by dx. इत्थे की हो जाएगा तुहाडे कोल dt dt कैंसल हो जाएगा, dy by dx ही आ जाएगा. मतलब आप कैंसल नहीं करना, आप की कर रहे हैं भी dy by dx ਨੂੰ ਆਪਾਂ इस फॉर्म च लिख सकते हैं. दोनों चो जेडी मर्जी फॉर्म यूज कर सकते हो. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ टेकिंग रेसिप्रोकल लेना पैना, ये एज इट इज हो जाएगी. सो लेट अस टेक द एग्जांपल. कोई एग्जांपल देखो. लेट x इज इक्वल्स टू sin t एंड y इज इक्वल्स टू cos t. ठीक है जी. किसी थर्ड वेरिएबल्स हो गए, x है जेड़ा वो t च है, y भी t च है. तो विद रिस्पेक्ट टू आप उस वेरिएबल के डेरिवेटिव करना है. दैट मींस जेड़ा x है ओदा विद रिस्पेक्ट टू आप किदे डेरिवेटिव कर रहे हैं, t के. सो sin t दा डेरिवेटिव cos t. देखो आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जदों करदे सी दैट मींस sin x का डेरिवेटिव की आ जांदा सी, cos x आ जांदा सी. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं. सो sin t ਦਾ डेरिवेटिव की हो गया, cos t हो गया. इधर dy upon dt की आ गया, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t. तो dy by dx की बन गया dy upon dt divided by dx upon dt. तो dy upon dt की वैल्यू माइनस sin t, dx upon dt की वैल्यू cos t, माइनस sin t upon cos t that is tan t. This is your answer. sin t upon cos t. sin upon cos t ਹੁੰਦਾ जी अपने को tan. So angle as it is आ गया. So let us start our exercise. Question number first. Question number first देखो स्टूडेंट्स की अपने को. So let find dy by dx. X is equals to at square and y is equals to 2at. First question. X is equals to at square and y is equals to 2at. So start its derivative with respect to x करांगे. तो dx upon dt की आ गया जी a as it is. t square का डेरिवेटिव की हो जाएगा 2t and dy upon dt is equals to 2a as it is. t का डेरिवेटिव with respect to t की आ गया 1. So dy upon dx is equals to, you can write dy upon dt divided by dx upon dt. dy upon dt is, sorry, here is t. dy upon dt is 2a and dx upon dt is 2at. So 2a की हो गया, कैंसिल हो गया. आंसर इज 1 by t. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज x is equals to 4t and y is equals to
4 upon t. X is equals to 4t and y is equals to 4 upon t. So dx upon dt की आ गया जी इथों अपने कोल t ਦਾ with respect to t डेरिवेटिव 1 नहीं ਹੁੰਦਾ जिस तरह x ਦਾ डेरिवेटिव की ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1. So t as it is आ गया t ਦਾ डेरिवेटिव 1 and derivative dx upon dt is equals to 4. So dy upon dt is equals to देखो 4 as it is 1 by t ਦਾ डेरिवेटिव 1 by t ਦਾ डेरिवेटिव देखो किस तरह करांगे. यू कैन राइट हियर 1 by t is equals to t पावर -1 लिख सकते हैं. सो पावर अगे आ गई ऊपर एक पावर घट गई -1 as it is t की पावर -2 नेगेटिव पावर है नीचे जाके की होगी पॉजिटिव. मतलब 1 by t का डेरिवेटिव की आ गया -1 by t स्क्वायर. सो दिस इज -4 upon t स्क्वायर and this implies dy by dx is equals to dy upon dt divided by dx upon dt. dy upon dt means -4 upon t square. dx upon dt means 4. 4 ਦੇ नीचे की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 नहीं है. So this implies एक ही बन गया जी अपने कोल -4 upon t square into 1 by 4. 4 और 4 cancel out. Answer is -1 upon t square. Next question is if x is equals to log t and y is equals to sin t. If x is equals to log t and y is equals to sin t. So derivative करो इधर देखो की आ गया अपने को dx upon dt is equals to log t का डेरिवेटिव जी 1 by t. dy upon dt is sin t का डेरिवेटिव cos t. So dy upon dx is equals to dy upon dt divided by dx upon dt is equals to, you can write here cos t divided by t. This is your answer. Next question is if x is equals to c sin theta, if x is equals to c tan theta and y is equals to c cot theta, find dy upon dx. देखो की करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने कोल. So dx upon d theta is equals to c as it is tan theta the derivative secant square theta and dy upon d theta is equals to c as it is जो भी कांस्टेंट सी as it is रहंदा सी जो वेरिएबल नाल पे cot theta the derivative minus cosecant square theta. So this implies you can write here minus c cosecant square theta and dy upon dx is equals to minus c cosecant square theta divided by c secant square theta. c cancel हो गया minus as it is. You can write cosecant ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 1 upon sin. So this is 1 upon sin square theta. इन्हें उल्टा करके ऊपर ले आओ. This is cos square theta upon 1. मतलब secant square theta ਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं 1 upon cos square. So minus as it is cos square upon sin square की बन गया अपने को cot square theta. This is your answer. The next question is क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो. सिक्स्थ क्वेश्चन देखो. इफ x is equals to a secant theta and y is equals to, if x is equals to a secant theta and y is equals to b secant square theta. So find dy upon dx
देखो dx अपॉन d थीटा की आ गया जी, देखो लो secant थीटा का डेरिवेटिव secant थीटा tan थीटा, ठीक है जी, एंड dy अपॉन d थीटा, सॉरी हियर इज a secant थीटा, सो a एज इट इज नाल ही आ जाएगा, dy अपॉन d थीटा b एज इट इज, secant स्क्वायर पावर अगे आ गई 2 secant थीटा एज इट इज into secant theta the derivative secant theta tan theta. So dy upon dx is equals to dy upon d theta ऊपर आ जाएगा, की आ गया 2b secant theta into secant theta, secant square theta tan theta as it is divided by a secant theta tan theta. देखो की कैंसिल हो गया, एक secant कैंसिल हो गया, tan कैंसिल हो गया, आंसर की रह गया जी 2b upon a secant theta, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, देखो x is equals to 2 cos cube theta and y is equals to 2 sin cube theta. So dx upon d theta देखो की आ गया अपने को, देखो 2 एज इट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका की कितने पावर अगे आ जाती है, पावर अगे आ गई 3, एक पावर कट गई, कितनी रहेगी cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, एक ही बन गया माइनस अगे आ गया जी 2 into 3 is 6 cos स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा. नाउ dy अपॉन d थीटा की आ गया 2 एज इट इज, सेम एज इट इज, पावर अगे आ गई, ऊपर एक पावर कट गई, दैट मींस sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया cos थीटा. सो यू कैन राइट हियर दिस इज 6 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा. सो dy by dx is equals to dy upon d theta divided by dx upon d theta. dy upon d theta की वैल्यू 6 sin स्क्वायर थीटा cos theta divided by dx upon d theta की वैल्यू minus 6 cos square theta sin theta. So 6 और 6 कैंसिल, एक sin कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो गया, की रह गया sin upon cos tan theta minus as it is, नेगेटिव का साइन उससे तरह आ जाएगा अपने को. So next question is question number 8, देखो इम्पोर्टेंट है बच्चे. Question number 8 is yx is equals to e power t cos t. ये क्वेश्चन है, वैसे द फोर्थ द बी पार्ट है स्टूडेंट्स. x is equals to e power t sin cos t and y is equals to e power t sin t. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दो चीज गिवन है कि फाइंड करना है एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 ते फाइंड करना है आपको, ठीक है जी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल dx अपॉन dt फाइंड किया है, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, देखो दो फंक्शन आ गए अपने को, फर्स्ट और सेकंड, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e दी पावर t द डेरिवेटिव की होता है e पावर t. सो यू कैन राइट हियर e पावर t, दोनों जो कॉमन आ गया, ब्रैकेट्स रह गया माइनस sin t प्लस cos t, और यू कैन से e पावर t cos t माइनस sin t, ठीक है जी. नेक्स्ट इज dy अपॉन dt, dy अपॉन dt की आ गया जी, फिर एज इट इज प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट और सेकेंड. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e पावर t, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन sin t द डेरिवेटिव cos t प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e पावर t द डेरिवेटिव की आ गया e पावर t, सेम एज इट इज e पावर t कॉमन आउट, इनसाइड की रह गया अपने को cos t प्लस sin t. सो dy अपॉन dx की आ गया जी अपने को dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt.
डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करो, ई पावर टी कॉस टी प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय ई पावर टी कॉस टी माइनस साइन टी। सो हियर ई पावर टी कैंसल आउट हो गया, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ cos t plus sin t cos t minus sin t। so here you have to put the value of t is equals to pi by 2, so cos pi by 2 plus sin pi by 2 divided by cos pi by 2 minus sin pi by 2। so cos pi by 2 that means cos 90 0 or sin 90 is 1, cos 90 is 0 and sin 90 is 1। values put करते हैं, 0 plus 1 is 1, 0 minus 1 is minus 1, answer will be minus 1। so next question देखो, next question is question number 10th 9th सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे हैं जी। अपनी बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th द फर्स्ट पार्ट। बुक का जो क्वेश्चन है यू कैन चेक 10th द फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं आप, एंड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। x is equals to a theta plus sin theta and y is equals to a 1 plus cos theta। ठीक है जी, डेरिवेटिव देखो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वेरिएबल थीटा ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, और सॉरी t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ थीटा। सो हियर विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करांगे, a as it is थीटा ਦਾ डेरिवेटिव 1 ਜਿਵੇਂ x ਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 प्लस sin थीटा ਦਾ डेरिवेटिव cos थीटा as it is dy upon d theta is equals to a as it is 1 ਦਾ डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है प्लस cos थीटा ਦਾ डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, or you can write here 0 plus minus minus 0 minus sin theta is minus sin theta। so dy upon dx is equals to dy upon d theta divided by dx upon d theta। dy upon d theta is minus a sin theta divided by a as it is 1 plus cos theta। so a ਨਾਲ a cancel out, रिमेनिंग की रह गया जी अपने को माइनस a sin theta and divided by सॉरी माइनस sin theta divided by 1 plus cos theta। को फिफ्थ सी सॉरी एफ एक्सरसाइज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ sin theta ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਂਗਲ ਹਾਫ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 2 sin theta by 2 cos theta by 2 and 1 plus cos theta ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 cos square theta by 2 और 1 minus cos theta ना 2 sin square theta by 2। मतलब एंगल हाफ हो जाता सी जे इथे थीटा ते इथे की आएगा थीटा बाय 2 थीटा बाय 2। ठीक है जी, सो हियर इथे भी यही फार्मूला अप्लाई करांगे, माइनस एज इट इज sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये कैंसिल हो गया जी, 2 कैंसिल हो गया, एक cos कैंसिल हो गया, sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2, दिस इज tan थीटा बाय 2। ठीक है जी, नेक्स्ट इज एक नेगेटिव च देखो 10th का ही पार्ट है जी। x is equals to if x is equals to a theta minus sin theta and y is equals to b
1 plus cos theta. So same as it is, क्वेश्चन च थोड़ा जा साइन का ही चेंज है रजे. So dx upon d theta is equals to a as it is theta का डेरिवेटिव 1 minus sin theta का डेरिवेटिव cos theta. ठीक है जी. dy upon d theta is equals to b as it is 1 the derivative 0 cos theta derivative minus sin theta. So it becomes minus b sin theta. So dy upon dx is equals to dy upon d theta divided by dx upon d theta. Or dy upon d theta is minus b sin theta divided by a 1 minus cos theta. So minus b as it is, देखो इधर कांस्टेंट भी दोनों डिफरेंट है, सो कैंसल आउट नहीं होंगे. साइन थीटा का फॉर्मूला 2 sin theta by 2 cos theta by 2 divided by a as it is 1 minus cos theta का फॉर्मूला 2 sin square theta by 2. So 2 नाल 2 कैंसिल आउट, एक साइन कैंसिल हो गया जी. आंसर विल बी माइनस बी अपॉन ए कॉस अपॉन साइन की आ गया जी कॉट थीटा बाई 2. सो आई रिपीट द प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल तुसी की करना है, एक्स का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा. अपने को की सी एक्स गिवन सी ए थीटा माइनस साइन थीटा. सो जो ए थीटा माइनस साइन थीटा सी, थीटा का डेरिवेटिव की आ गया जी 1 एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा. सेम एज इट इज y की कितना आप b एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 एंड cos का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा. सो इट बिकम्स माइनस b sin थीटा. दोनों की वैल्यूज पुट कीती है, फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, अपने को आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. देखो क्वेश्चन नंबर 16 की है बच्चे. 16th क्वेश्चन देखो. x is equals to 2 cos square theta and y is equals to 2 sin square theta. So dx upon d theta is equals to 2 as it is cos square theta. That means पावर अभी आ गई, पावर कट गई, cos theta रह गया into cos theta the derivative minus sin theta. So it becomes 2 into 2 4 minus अभी आ गया जी cos theta sin theta. And dy upon d theta is equals to 2 as it is, same as it is, पावर आगे आ गई, पावर माइनस होगी sin theta into sin theta the derivative cos theta and it becomes 4 sin theta cos theta. dy upon dx is equals to, तो dy upon d theta ऊपर आ गया 4 sin theta cos theta divided by minus 4 cos theta sin theta. So sin theta and cos theta कैंसिल आउट हो गए, 4 भी कैंसिल हो गया. आंसर विल बी -1. इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्यूब वाला. सो x इज इक्वल्स टू 3 cos क्यूब थीटा 3 cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू 3 sin क्यूब थीटा. So dx upon d theta is equals to 3 as it is, पावर अभी आ गई थी 3, एक पावर माइनस होगी, की रह गया cos square theta into cos theta का डेरिवेटिव माइनस sin theta. So it becomes minus 9 cos square theta and sin theta. Here dy upon d theta is equals to 3 as it is, पावर अभी आ गई थी 3, एक पावर माइनस होगी, so sin square theta into sin theta का डेरिवेटिव cos theta. So it becomes 9 sin square theta and cos theta. So dy upon dx is equals to dy upon d theta 9 sin square theta cos theta divided by minus 9 cos square theta sin theta. So 9 ना 9 कैंसिल आउट, एक साइन कैंसिल हो गया, तो cos कैंसिल हो गया जी. माइनस साइन अपॉन cos की रह गया tan थीटा. सो ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ जिन्ने क्वेश्चंस कीते हैं जी वो की कीते हैं इन टर्म्स ऑफ sin थीटा cos थीटा च कीते हैं. एक tan वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है.
की है x इज इक्वल्स टू a tan स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल्स टू b secant स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x का डेरिवेटिव करांगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dx अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू a एज इट इज, पावर अगे आ गई जी 2, एक पावर माइनस होगी, की रह गया tan थीटा इनटू tan थीटा का डेरिवेटिव secant स्क्वायर थीटा। सो नेक्स्ट इज dy अपॉन d थीटा is equals to d as it is, पावर अगे आ गई secant थीटा, एक पावर माइनस होगी into secant थीटा का डेरिवेटिव secant थीटा tan थीटा, और you can write here 2b secant थीटा into secant थीटा, secant स्क्वायर थीटा tan थीटा। So dy upon dx is equals to y वाला ऊपर आ जाएगा 2b secant स्क्वायर थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय 2a tan theta secant square theta. So secant square theta cancel, tan theta cancel, 2 null 2 cancel, answer will be b upon a. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 है x is equals to, बुक द क्वेश्चन नंबर 12 है जी, if x is equals to a sin t, a sin t and y is a sin theta and y is equals to a cos theta plus log of tan theta by 2, tan theta by 2। देखो x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना है, इजी हो जाएगा, a एज इट इज sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा एंड dy अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू a एज इट इज cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/x, मींस आ सारा की है x है, दैट मींस ये की बन जाएगा 1/x मतलब 1/tan थीटा बाय 2 इनटू x का डेरिवेटिव ਹੁੰਦਾ ਸੀ, सो इनटू tan थीटा बाय 2 ਦਾ डेरिवेटिव secant स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू थीटा बाय 2 ਦਾ डेरिवेटिव 1/2। सो आई रिपीट द प्रोसेस, a एज इट इज cos थीटा ਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ माइनस sin थीटा, log of x ਦਾ डेरिवेटिव ਹੁੰਦਾ 1 upon x, दैट मींस जो log ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਮ ਪਈ ਆ ਉਹ 1 upon ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, सो 1 upon tan थीटा बाय 2 into tan ਦਾ डेरिवेटिव secant स्क्वायर थीटा by 2 into एंगल ਦਾ डेरिवेटिव 1/2। सो इतो देखो अपने को इनको सिंपलीफाई करते हैं, a एज इट इज माइनस sin थीटा एज इट इज प्लस अब 1/2 नु आगे लिखो, दिस इज tan secant स्क्वायर थीटा by 2 1 upon tan थीटा by 2 नु की लिख सकते हैं sin थीटा by 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा by 2, तो secant स्क्वायर 1 upon cos स्क्वायर थीटा by 2, ठीक है जी, एक cos कैंसिल हो गया, सो इतना अपने को की आ गया a एज इट इज माइनस sin थीटा एज इट इज प्लस 1 बाय की बचे अभी अपने को 1/2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2। सो एक आधा फार्मूला सी अपने को sin थीटा का माइनस sin थीटा प्लस 1 upon sin थीटा, so taking LCM you can write here 1 minus sin square थीटा, देखो नेगेटिव सी माइनस sin square थीटा हो गया प्लस 1 आ जाना, वो 1 नु मैं आगे लिख लिया, माइनस sin square थीटा पीछे ले गई, डिनोमिनेटर च की आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ sin थीटा, so 1 minus sin square ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ cos square थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वैल्यू आई है dy upon d थीटा। so dy upon dx is equals to dy upon d theta divided by dx upon d theta, dy upon d theta की वैल्यू a cos square theta divided by sin theta, so denominator च की आ गया जी अपने को dx upon d theta की वैल्यू a cos theta upon 1, so you can write here
a cos square theta upon sin theta into 1 upon a cos theta। so a कैंसल, एक cos कैंसल, so cos theta upon sin theta की आ गया जी cot theta। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।